दोनों क्यों रह गई? पता नहीं। शलिका हो, सुरभि आओ। सुरभि We all. come. Tariq, this is on behalf of all the women who are present here. Thank you. Thank you for this gathering. So, thank you. नारी केवल सृजन की शक्ति नहीं, Worthy Dean Faculty of Business Studies and Director SciTech Professor Alka Sharma, my dear faculty colleagues of TBS and dear scholars, a very warm and heartfelt welcome to all of you on this special mini day. It is truly an honor and privilege to witness such an august and inspiring journalism, and also the mentors and young minds all under one roof. Your presence adds immense value to this occasion and makes this celebration even more meaningful. Today is a reminder of the struggles that women have endured, the progress that has been achieved, and the journey that lies ahead. My achievements and leadership continue to inspire those around you and also transform society. That institutions like ours play in shaping the future. Business schools are not merely institutions that influence how organizations will function tomorrow. Institutions like the University of Jammu therefore carry a special responsibility. By educating women and young men in this region, we create entrepreneurs who create opportunities, managers who lead teams, innovators who design solutions, and policymakers who influence economic development. And today's persons, Advocate Meenakshi Salatia, Dr. Saima Sadi, and Ms. Asha Sarnal, my heartfelt welcome as well as thank you. So this is indeed an occasion to celebrate your achievements and you as role models to all the young girls and boys sitting out there, and probably defining that womanhood which is there in the society and more importantly in their homes. So thank you very much to all the panelists who agreed to our request and are here. I have been given a job to set a theme, although the theme has already been set by a wonderful performance. But I would like to just bring to your notice that this year, the United Nations gave the theme Give to Gain. And what does give to gain mean? Give to the women, and the gain is for the society. So what women can be given in a society? Women can be given an opportunity. Women can be given a better environment to work upon. Women can be given a chance to perform, and probably from there we start the game. The values of leadership, responsibility, and professionalism that inspire many young individuals in medical education. She holds several prestigious professional credentials, including fellowship in the legal field. Her professional journey serves as an inspiration for upcoming lawyers and young professionals. Currently, she is also serving as a veterinary. Let us now welcome ये प्रोग्राम जो है इंटरनेशनल वुमेंस डे के लिए सेलिब्रेशन है, और इसमें बिजनेस स्कूल ने 5 लीडिंग जो विमेन हैं उनको बुलाया है अलग अलग फील्ड्स में। एक डॉक्टर हैं, एक केएस ऑफिसर हैं, एक लॉयर हैं, एक राइटर हैं और एक जर्नलिस्ट हैं। तो ये अलग अलग फील्ड से विमेन जो हैं जिन्होंने अचीव किया है वो आई हैं, और वो अपने स्टूडेंट्स के साथ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ बताएंगी कि क्या उन्होंने किया, क्योंकि इस बार का थीम जो है वो है गिव टू गेन, कि विमेन को आप अपॉर्चुनिटी दो, विमेन को आप मौका दो, ताकि वो कल इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकें अच्छा बनाने में, सस्टेनेबल बनाने में, और इंश्योर करें कि हम एक अच्छे डेवलप्ड कंट्री में 2047 जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर सकें। मैम, जिस तरह से हर साल इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है, लेकिन आज भी देखा जाता है कि वुमेन के साथ एक डिस्क्रिमिनेशन रहता है। अगर इलेक्शन की बात करें, जो पॉलिटिकल जो है की बात करें, रिजर्वेशन में 2029 को
ये जो है वो 50-50 का किया है कि हम 33% देंगे, 33% तो 50-50 का है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जी, अगर आप पॉलिटिकल देखें तो हाँ, और उसमें शायद कुछ जो हाथ है वो ये भी है कि औरतें ऐसे फील्ड्स में, अभी बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पे उनको अभी बहुत कुछ करने को है। अभी तक अगर आप अपॉर्चुनिटी की बात करो तो औरतें बड़ी ट्रेडिशनल फील्ड्स में रही हैं। पॉलिटिक्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें अभी औरतें कम हैं, लेकिन अब नंबर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। तो आई एम श्योर कि अगर ऐसे कोई रूल्स बन जाते हैं तो औरतें वहाँ भी आएंगी, लेकिन मुझे ये लगता है डिस्क्रिमिनेशन तो है ना। डिस्क्रिमिनेशन हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि रिजर्वेशन कभी भी हल नहीं है किसी फील्ड में आपकी पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने का। हमेशा महिलाओं को सेकंड का शहरी क्यों बताया जाता है? विमेन को बताया नहीं जाता, विमेन होती नहीं है, लेकिन बिहेवियर ऐसा है। सरकार या गवर्नमेंट में कहीं पे भी सेकंड सिटीजनशिप प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी में अंदर, घर के अंदर, तो हम घर के अंदर की बात तो करें पहले, अपने घर में तो देखें कि क्या हम अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी जो घर की लेडीज़ हैं, क्या हम उनको वो सब मौका दे रहे हैं कि वो जाएं? क्यों औरत के लिए कुछ तो मजबूरी भी हो सकती है, शायद सिक्योरिटी, सेफ्टी, वो भी हमारा ही काम है, लेकिन ये सब ठीक करने की ज़रूरत ज़रूर है अगर हम एक अच्छी सोसाइटी बनाना चाहते हैं। मेरा एक सवाल रहेगा लास्ट में कि औरत ही औरत की दुश्मन है, ये कितना सच है? देखिए, दुश्मन तो कोई भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है औरत की। ये एक स्टेटमेंट नहीं है जिसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। हाँ, कुछ केसेस में हमने देखा है, सुना है आसपास में, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी इसलिए शायद कि हमारे घरों में पहले लेडीज़ इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, जैसा घर के अंदर चलता था वैसा ही कैरी फॉरवर्ड करती थी। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है ये ठीक हो जाएगा। पुरुष प्रधान समाज में औरतों को आज भी उसी तरह से प्रताड़ित किया जाता है, क्या कहते हैं? अब चाहे कोई भी ऑफिस हो, जहाँ पे भी सुरक्षा नहीं है, हर जगह पे भी सुरक्षा। हाँ, औरत को अपने आप को प्रूव करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है, पर मुझे लगता है कि इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि औरत में कैपेसिटी है काम करने की। आज भी औरत घर का काम करके, दफ्तर का काम करके वापस जाके घर का काम करती है। तो हम लोगों का ये जो है बिल्डअप ऐसा है। पर हाँ, अगर कोई ऐसी आउटराइटली बातें हो रही हों तो उनको अवॉइड किया जाए तो अच्छा ही। अर्बन के बजाय रूरल एरिया में औरतों की जो है वहाँ पे काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन अक्सर देखा जाता है कि घर में बूढ़े माँ बाप जो हैं वो बेटे को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बेटी को काम काज करो उसके बाद स्कूल जाओ। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि औरत को, लड़की को आप मौका दो, पढ़ाओ, तभी यही जो छोटी छोटी डिस्क्रिमिनेशंस हैं इनको ठीक करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। By the Government of India. She is also the author of multiple books and has written for newspapers like the Daily Guardian. Through her entrepreneurial initiatives, she continues to motivate young professionals and aspiring entrepreneurs to pursue innovation, creativity, and leadership. चलते रहो।